Hello everyone. So today we'll start with Bose-Einstein statistics. Now what is Bose-Einstein statistics? We have already discussed about this thing. Now this statistics is basically obeyed by the particles which are indistinguishable, okay, and which have integral spin. That means these statistics is basically obeyed by the bosonic particles or such particles are called bosons. ये मैं already बता चुकी हूँ that what is a Bose-Einstein statistics. It is basically followed by the indistinguishable identical particles which are having integral spin, and these particles are called bosons. ठीक है? Now what we'll do here, we'll derive the Bose-Einstein distribution law for the most probable distribution. Now वो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम कंसीडर किया है. मैं इस सिस्टम को नहीं एक्सप्लेन कर रही, ये सब करने की जरूरत नहीं है. देखो ये कहता है कि Bose-Einstein statistics में these are the following conditions that we should follow. ठीक है, the first condition says that जो हमारे particles है system के that should be indistinguishable from each other. That means there is no distinction between the different ways in which the Ni particles can be distributed. हर एक particle को we can say that these are represented by dots. Instead of writing that this is A particle, this is B particle, we don't know whether this is A particle or B particle. We just know that there are two particles. ठीक है? Next it says that each sublevel of the ith energy state may have any number of identical particles. That is, it can contain 0, 1, 2. अब मैंने ये सिस्टम जो है इसमें ये चीज देखो, मैंने ये पैराग्राफ तुम लोगों को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पर ये लिख रहे हैं ये कंडीशंस समझाने के लिए that we are considering a system which is consisting of n indistinguishable particles, और इन पार्टिकल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने टोटल एनर्जी लेवल्स जो है वो आई लिए हैं. ठीक है, बट हम यूजुअली क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी यू है और हमने जो है अपना सिस्टम जो है उसको डिवाइड किया इनटू के एनर्जी लेवल्स और वी कैन से के इंटरवल्स. ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी है दैट इज U1, देन U2 सो ऑन अप टू UK. यहाँ पे ये UI तक ले रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज को नहीं तुम लोगों को बता रही. जब ये बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करेंगे ये, तो यहाँ पर ये के कंपार्टमेंट्स में ही डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स के एनर्जी लेवल्स में ही डिवाइड कर रहे हैं. तो हम डायरेक्टली इसी को ही समझेंगे. कंडीशंस हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में, दैट द पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. एंड द सेकेंड थिंग इज किसी भी एनर्जी लेवल पे या एनर्जी लेवल जो है जब हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, तो किसी भी सेल में जो है कितने भी पार्टिकल्स जो है वो हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टिकल पे. इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सो एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल एनर्जी level, or you can say that any number of identical particles can occupy a single cell. Next, what does it say? That the total energy of the system should be constant. ठीक है, the sum of energies of all the particles in the different energy states is equal to the total energy of the system. हम जो सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो हर एक एनर्जी लेवल पे वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी. लेट्स से इफ आई एम सेइंग दैट टोटल एनर्जी इज U, then that will be equal to N1 U1 plus N2 U2 plus N3 U3 up to plus Nk UK. अगर मैं K levels में डिवाइड कर रही हूँ तो now we have used approximate constant energy in accordance with Heisenberg's uncertainty principle, according to which no simultaneous measurement of position and momentum can be done with perfection. Now अब इसमें ना एक चीज और ध्यान रखने की है, ये मैं पहले भी बोलती थी कि अगर मैं कह रही हूँ लेट्स से लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो है हमारा 1 है, उसमें जो एनर्जी जिसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे लेट इट बी N1, और N1 पार्टिकल्स जो है हमारे, हर एक पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, कितनी एनर्जी वो पोजेस कर सकता है, U1. दिस U1 इज एक्चुअली द मीन एनर्जी. हर एक पार्टिकल जो है जरूरी नहीं है उसकी एग्जैक्टली एनर्जी जो है U1 हो. ठीक है, वी कैन से दैट दिस इट इज
almost equal to or nearly equal to. It cannot be perfectly equal to u1. We can say that it is very near to u1. तो हम क्या कहते हैं, let u1 जो है that is representing the average energy of the particle present in that particular energy state. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एनर्जी लेवल ले रहे हैं, ith एनर्जी लेवल. लेट्स से उसमें हमारे उस एनर्जी लेवल पे हमारे ni पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और ये जो पार्टिकल्स हैं दे कैन हैव एनर्जी ui. तो ये यही लिखा है कि ये सही नहीं होगा कहना कि ith एनर्जी स्टेट पे जो ni पार्टिकल्स है उनकी एग्जैक्टली एनर्जी इक्वल टू ui है. एनर्जी वैल्यूज जो है कैन नॉट बी परफेक्टली इक्वल टू ui. We can say that energy of ni particles is very near to ui. ठीक है, so this means that there can be a number of sub energy levels around ui in which ni particles are distributed. Let number of such sub energy levels be gi, which is called degeneracy of energy state ui. In energy state ui, there are ni particles having energies around ui, and in all gi sub-energy levels, they are present in which ni particles are distributed. देखो अब इसका मतलब क्या है, इसको समझना है. ठीक है, मैंने जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कराया था तो वहां पे मैंने ये चीज बोली थी कि जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वहां पर डिराइव होके आया था ni is equal to 1 upon e raised to power alpha plus beta ui. मैंने वहां पे ये चीज बोली थी कि in general we should write Boltzmann distribution law as ni is equal to gi upon e raised to power alpha plus beta ui. और मैंने बताया था ये gi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं बताऊंगी when we'll start with Bose-Einstein statistics. Now gi हमारा क्या होता है, ये बेसिकली डीजेनरेसी है. ठीक है, इसको हम डीजेनरेसी भी कहते हैं और स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं. अगर हम GI कह रहे हैं तो लेट्स से GI इज रिप्रेजेंटिंग द डीजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट करस्पॉन्डिंग टू द ith एनर्जी स्टेट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास, मैंने पहले ऐसे बताया था ना, हमारे पास ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और वी कैन से डिफरेंट एनर्जी इंटरवल्स हैं. ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है ना, सपोज हम कह रहे हैं, सपोज हम ith ही ले लेते हैं. ठीक है, ये ith एनर्जी लेवल है, यहाँ पे ni पार्टिकल्स हैं. ठीक है, एंड वी कैन से दैट हर एक पार्टिकल जो है उसकी एग्जैक्टली एनर्जी ui नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू ui. सो ui इज बेसिकली द एवरेज और द मीन वैल्यू corresponding to this particular energy state. तो हम कह सकते हैं कि this energy state जो है this is divided into large number of sub energy levels. ठीक है, और ये कितने हैं, the number of these sub energy levels are gi. ठीक है, so gi जो है it is basically representing the sub energy levels that are present in this ith energy state in which we have to distribute these ni particles. ठीक है, तो अगर ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो यहाँ लेट्स से इट इज डिवाइडेड इनटू G1 सब एनर्जी लेवल्स in which we have to distribute N1 particles. ठीक है, and let's say the mean energy value in this first energy level, or you can say that in the first compartment, is U1. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है UK होगा which is representing the mean value. Then we have the number of particles Nk that is to be distributed in Gk sub energy levels corresponding to this energy state. ठीक है, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे. तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए बस. नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब एग्जाम में डिराइव करने के लिए आएगा, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, यहाँ से शुरू करना है. एक ये चीज और पढ़ लो, for finding the energy or momentum distribution of the particles obeying Bose-Einstein statistics in most probable or equilibrium state, let us divide the available volume in phase space into large number of compartments. Let's say we are dividing this phase space into k number of compartments, each compartment representing a small interval of energy or momentum of particles. Each of these compartments is further divided into elementary cell
of size h cube where h is the Planck's constant. ठीक है, तो हर एक कंपार्टमेंट या हर एक हमारा पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स. अगर हम kth कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो g के सेल्स में डिवाइडेड है. अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो g1 सेल्स में डिवाइडेड है. ith कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो gi सेल्स में वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट डिवाइडेड है. ठीक है, और जो हमारे ये gi सेल्स हैं इसमें जो हर एक सेल है उसका मिनिमम वॉल्यूम दैट वी कैन टेक इज h cube where h is the Planck's constant. ठीक है, so it is assumed that the size of the compartment is very large as compared to the size of the cell. जो साइज है कंपार्टमेंट का या एनर्जी इंटरवल का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट जो है इट इज कंटेनिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. तो ऑब्वियसली कंपार्टमेंट का साइज जो है सेल्स से ज्यादा होगा तभी तो हम कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड कर पाएंगे. और जितना ज्यादा साइज होगा कंपार्टमेंट का उतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स जो है दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए. So let's say n1, n2, n3 up to nk be the particles which are having the mean energy values u1, u2, u3 up to uk respectively in compartments numbered 1, 2, 3, ik having g1, g2, g3, gk elementary cells respectively in them. The total number of particles in the system remains constant, that is equal to n, which is equal to n1 plus n2 so on up to nk. ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम है. हमारा जो सिस्टम है इट इज कंटेनिंग n indistinguishable particles, or you can say that system is containing n number of bosons. Now the phase space is divided into k compartments and each compartment is divided into large number of cells. तो let's say जो हमारे पास k compartments हैं उसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो n1 है दैट कैन हैव मीन एनर्जी वैल्यू u1. सेकंड में n2 है दैट कैन हैव द मीन एनर्जी वैल्यू u2. इस तरीके से अगर मैं कहूँ थर्ड में n3 है, k में nk है. इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल प्रेजेंट है दे कैन हैव द मीन एनर्जी वैल्यू u1. यहाँ पर जो है दे कैन हैव द मीन एनर्जी वैल्यू u2. यहाँ पर जो है दे कैन हैव u3. यहाँ पे जो है दे कैन हैव द मीन एनर्जी वैल्यू uk. नाउ दिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. लेट्स से n1 particles जो है now they are to be distributed in these cells which are present in the first compartment. तो जो number of cells हैं that will be g1. G1 is representing the number of elementary cells in the first compartment in which the n1 particles are to be distributed. Similarly, G2 is representing the number of elementary cells in the second compartment in which n2 particles are to be distributed. Similarly, Gk is representing the number of elementary cells in the kth compartment in which nk particles are to be distributed. ठीक है, तो ये जो हमारा कंपार्टमेंट है इसको हम एनर्जी लेवल्स भी या एनर्जी इंटरवल भी कह सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा ith लेवल है इट इज डिवाइडेड इनटू gi सब लेवल्स. ठीक है, सब एनर्जी लेवल्स. तो हर एक so we have to distribute now ni particles in these different sub energy levels. ठीक है, तो ये हम इसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब हमें सिस्टम पता चल गया तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा टू फाइंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. जो हमें बेसिक अप्रोच है वही यूज करनी है 3 स्टैटिस्टिक्स में. बेसिक अप्रोच क्या थी? सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं W, फिर हम उसका लॉग लेते हैं, लॉग W निकालते हैं, फिर हम कहते हैं अगर ये हमने जो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिखी है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जो है प्रोबेबिलिटी शुड बी मैक्सिमम, और वी कैन से दैट सिस्टम जो है अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उस स्टेट में पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. तो फिर हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव टू बी इक्वल टू 0, दैट इज d log w इक्वल टू 0. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. फिर हम लिखते हैं that summation dni is 0, total number of particles are constant. Then we write summation ui dni equal to 0, that means total energy is constant. फिर हम उसको माइनस अल्फा
से मल्टीप्लाई करते हैं समेशन डी एन आई को, और माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं समेशन यू आई डी एन आई को। फिर तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, विच इज नोन एज द Lagrange's मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ log w माइनस अल्फा समेशन डी एन आई माइनस बीटा समेशन यू आई डी एन आई शुड बी इक्वल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना है टू फाइंड Bose-Einstein डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस इक्वेशन का यूज करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो मैंने डेरिवेशन बताया था दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, उसके बाद देन यू कैन राइट दैट first point is to determine thermodynamic probability. So for this let us now consider the ith compartment हैविंग GI सेल्स। हमारे पास k कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें से हमने अभी एक सिंगल कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, लेट इट बी द ith कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट को हमने डिवाइड किया इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स। तो लेट्स से GI इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स in which this ith compartment is divided, and now we have to distribute these Ni identical or indistinguishable particles in these GI cells. So how we can distribute, what will be the number of ways of distributing these Ni particles in these GI cells? अगर हम उसको निकाल लेंगे, the number of ways of arranging Ni particles in GI cells present in the ith compartment, ये हमारी क्या होगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, दैट मींस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। नाउ let us assume that the individual cell in the ith compartment be denoted by C1, C2, C3 and so on, the number of them being GI। हम इसमें क्या एज्यूम करें, ये सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में अगर नहीं लिखना चाहते तो ये चीज मत लिखना, पहले इतनी चीज जरूर लिखना, ठीक है। अब ये समझाने के लिए मैं ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम में लिखना ना लिखना तुम्हारी मर्जी है ये चीज। तो लेट्स से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारा ith कंपार्टमेंट है उसके अंदर टोटल हमारे पास GI सेल्स है। लेट वो GI सेल्स हमारी कितनी है, C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ठीक है। हर एक कंपार्टमेंट जो है उसकी हमने हर एक जो सेल है कंपार्टमेंट के अंदर, उस सेल की हमने नेमिंग कर दी, C1, C2, C3 सो ऑन, सच दैट द टोटल इज GI, ठीक है। और P1, P2, P3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द टोटल नंबर Ni इन द ith कंपार्टमेंट। हम टोटल ith कंपार्टमेंट में टोटल GI सेल्स हैं जिनके अंदर हमें Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वेज से वी कैन डिस्ट्रीब्यूट Ni पार्टिकल्स इन द GI सेल्स ऑफ द ith कंपार्टमेंट। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम लेट से C1, C2, C3 जो है हमारे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल सेल। हमने हर एक इंडिविजुअल सेल को एक नाम दे दिया, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय C1, सेकंड सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय C2, थर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय C3, सो ऑन अप टू GI। वी हैव टोटल GI नंबर ऑफ सेल्स। फिर हमने कहा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन GI सेल्स में वो Ni है। लेट्स से P1 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल C1, P2 is representing the number of particles in the cell 2 and so on, ठीक है। So let us now calculate the number of ways in which Ni particles can be distributed in these GI cells. So for this we consider an arbitrary arrangement। ये हमने just for an example एक arrangement consider किया है तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए। ये कहता है सपोज हमारा इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा C1 सेल है, लेट्स से P1 and P2 are supposed to be the number of particles in the cell C1, P3, P4, P5 जो है these are the number of particles in the cell C2, P6 in C3, P7 and P8 in C4, ठीक है। तो हमारा ये P1, P2, P3, P4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पार्टिकल को हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है। हर एक ये इस चीज को करेक्ट करना, P1 जो है हमारा, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल C1,
P1 जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द वन पार्टिकल। ठीक है, मैं इस चीज को एक बार दोबारा बता देती हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास क्या है, ith कंपार्टमेंट है जिसको हमने GI सेल्स में डिवाइड किया है और उसके अंदर हमें Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें ये निकालना है कितने नंबर ऑफ वेज से हम इन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दीज GI सेल्स। तो हम क्या करेंगे, हम इन Ni पार्टिकल्स को एक नंबर दे देंगे और GI सेल्स को भी एक नंबर दे देंगे। तो let's say C1 is representing the first cell, C2 is representing the second cell, ऐसे we have in total GI cells. P1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टिकल। अगर अभी पार्टिकल को हम अगर डिस्टिंग्विशेबल मान रहे हैं, एक पार्टिकल P1 है, दूसरा P2 है, एक P3 है, सच दैट टोटल हमारे कितने होंगे Ni। ठीक है, तो हमने ये आर्बिट्री अरेंजमेंट ले लिया। ये हमारा क्या कहता है, P1 and P2 जो है these are the particles in C1, P3 P4 in C2, P6 in C3, P7 and P8 in C4, number of particles in C5 and so no particles in C5 and so on। ठीक है, C5 के आगे देखो कुछ भी नहीं है, तो C5 में कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, C6 में P9 है एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द फर्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस शुड एविडेंटली बी अ C। इसका मतलब ये जो हमारा अरेंजमेंट है जिसमें हमने पार्टिकल्स को डिवाइड किया इनटू GI सेल्स, इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है, कोई एक सेल। ठीक है, हमारे पास टोटल सेल्स कितने हैं GI। ठीक है, तो हमने लिख दिया एक सेल GI। ठीक है, उसके बाद हमारे अब कितने बचे, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं। अब यहाँ से हमने पार्टिकल्स लिखने शुरू करे ना, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं Ni। ठीक है, और अब टोटल सेल्स कितने बचे, एक सेल हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, टोटल सेल्स अब कितने बचे इस पूरे अरेंजमेंट में, GI-1 एक हमने ले लिया ना GI में से, तो कितने बचे GI-1। मतलब यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा, Ni प्लस GI-1। ठीक है, कितनी वैल्यूज है ये, Ni प्लस GI-1। ठीक है, इतने हैं ना ये नंबर्स, और ये आपस में कोई भी किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल किसी भी सेल में प्रेजेंट हो सकता है, और हमें इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सेल पहले है कौन सा बाद में, वो हम बाद में देखेंगे। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, Ni प्लस GI-1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हुए, नंबर ऑफ वेज हुए GI इंटू Ni प्लस GI-1 फैक्टोरियल। अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, उसको पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट लेटर है इस सीक्वेंस में इट शुड बी एविडेंटली बी अ C, मतलब कोई भी एक सेल। ठीक है, तो लेट्स से दैट सेल इज GI। We therefore obtain all possible arrangements by writing down a C at the head of the series। शुरू में हमने C लिख दिया, ठीक है, जो हम यहाँ GI लिख रहे हैं। Which can be done in GI different ways as there are GI cells। GI में से कोई भी सेल प्रेजेंट हो सकता है पहले, ठीक है, तो हमने GI लिख दिया। देन उसके बाद अब कितने रिमेनिंग लेटर्स हैं इसके अंदर, इस सीक्वेंस में अब कितने लेटर्स रह गए, Ni प्लस GI-1। एक GI हमने ले लिया ना, तो GI-1 रह गए और टोटल Ni पार्टिकल्स हैं। तो अब हमने हमारे पास जो रिमेनिंग जो है Ni प्लस GI-1 लेटर्स जो है उनको हम लिख सकते हैं इन एन आर्बिट्री नंबर। ठीक है, इन एन आर्बिट्री मैनर, दैट इज इन एनी ऑर्डर वन आफ्टर द अदर, कोई भी पहले या बाद में आ सकता है। सो द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज Ni प्लस GI-1 factorial। So the total number of these arrangements or the ways for getting the distribution will be GI into Ni plus GI-1 factorial. So what will it give? This gives the total number of possible ways in which Ni particles can be distributed in GI cells of ith compartment. I hope ये सबको clear है। पर इस चीज का ध्यान रखना, ये फैक्टर लिखते टाइम हमने अभी पार्टिकल्स का इनडिस्टिंग्विशेबल नेचर तो कंसीडर किया ही नहीं। हर एक पार्टिकल को हमने एक नंबर दिया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, कि हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। आई होप ये वाला स्टेप सबको क्लियर होगा। ये मैंने कैसे लिखा मैंने, मैं ये कह रही हूँ, हमने जो है ये एक आर्बिट्री अरेंजमेंट कंसीडर कर लिया जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। फिर हमने कहा फर्स्ट जो हमारा इस सीक्वेंस में जो लेटर है दैट विल रिप्रेजेंट अ सेल, वी हैव इन टोटल ऑफ जी आई सेल्स, तो उसमें से हमने एक लिख लिया जी आई, ठीक है। अब हमारे पास कितने सेल्स बच गए, जी आई माइनस वन। तो जो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें अब जो रिमेनिंग लेटर्स है हमारे, वो कौन कौन कितने बचे, एन आई प्लस जी आई माइनस वन, ठीक है। और वो आपस में किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो एन आई प्लस जी आई माइनस वन को आपस में अरेंज करने का क्या तरीका होता है, एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये आ गया द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच एन आई पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जी आई सेल्स ऑफ ith कंपार्टमेंट. Now we will consider the indistinguishability effect to find the thermodynamic probability. So for this we have to find the total number of meaningful arrangements. तो उसमें से we have to remove the meaningless arrangements. That means हमें जो permutations हैं उनको remove करना है, जो मैंने फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी बताया था। मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स तब होते हैं जब हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पार्टिकल किस सेल में है, हमें बस इस चीज से मतलब है कितने पार्टिकल किस सेल में है, ठीक है। तो उसमें हम पार्टिकल्स का आपस में जो परम्यूटेशन होंगे उनको नेग्लेक्ट करेंगे, कि अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट सेल में ए है सेकंड सेल में बी है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ए फर्स्ट में है बी दूसरे में है, या बी फर्स्ट में है ए दूसरे में है, हमें बस इतना पता है दोनों में एक एक पार्टिकल है, ठीक है। सो एज द पार्टिकल्स आर ऑल आइडेंटिकल, the arrangement of particles among themselves will not give rise to any new distribution, ठीक है। अगर हम दो सेल्स में दो पार्टिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ए बी और बी ए हमें एक ही जो है अरेंजमेंट देगा, दैट इज दोनों में एक एक पार्टिकल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. Why? Because here the particles are indistinguishable. So arrangement of particles among themselves will be just meaningless. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब सीक्वेंस में Ni पार्टिकल्स थे और Gi माइनस वन सेल्स थे, ठीक है। तो उनका जो है आपस में अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहला हमने जी आई लिया था, ये भी कोई भी हो सकता है। तो इस पूरे सीक्वेंस में एन आई जो है और जो जी आई है उनका आपस में रीअरेंजमेंट जो है वो हमारा मीनिंगलेस है, सिंस दे आर आइडेंटिकल, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब जो अबव रिजल्ट हमारा आया, इट शुड बी डिवाइडेड बाय द मीनिंगलेस अरेंजमेंट ऑफ द particles, which is Ni factorial. This is representing the meaningless arrangement of the particles among themselves, or you can say that meaningless permutations of particles. Moreover, the distribution obtained by permutation of Gi cells among themselves is equal to Gi factorial. These also do not give the new states. हमें बस ये पता है जी आई सेल्स में हमें एन आई पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और कितने कितने सेल में कितने कितने पार्टिकल हैं, बस हमें उससे मतलब है। सो वी हैव टू डिवाइड द अबव रिजल्ट बाय एन आई फैक्टोरियल एंड जी आई फैक्टोरियल, सिंस दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। एन आई फैक्टोरियल बस रिप्रेजेंट कर रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अमंग देमसेल्व्स। सिमिलरली जी आई फैक्टोरियल जो है वो भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अरेंजमेंट अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, विच आर जस्ट मीनिंगलेस इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन विच सेल एंड इन विच पार्टिकल। अगर हमें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं कि कौन सा सेल है और कितने और कौन सा पार्टिकल है, हमें बस ये पता है कि एक सेल में इतने पार्टिकल है, ठीक है। So the number of distinguishable arrangements, or you can say that the number of meaningful arrangements for ith compartment, or the number of meaningful microstates for the ith compartment having Ni identical particles which is to be distributed in Gi cells will be, अब कितना हो गया हमारा
gi into ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial into gi factorial. ठीक है, तो this is representing the number of ways of distributing ni particles in gi cells of ith compartment, considering all the particles as indistinguishable. ठीक है, नेक्स्ट gi factorial को we can write as gi into gi minus 1 factorial. तो substitute this in this denominator, तो gi cancel out होगा and we get wi is equal to ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial into gi minus 1 factorial. ठीक है, इसी तरीके से we have in total k compartments, तो हम कहेंगे what will be the number of ways of distributing n1 particles in g1 cells of the first compartment. वो कितना होगा n1 plus g1 minus 1 factorial divided by n1 factorial into gi minus 1 factorial. Similarly, what will be the number of ways of distributing n2 particles in g2 cells of the second compartment? It will be n2 plus g2 minus 1 factorial divided by n2 factorial into g2 minus 1 factorial. Similarly, this is representing the number of ways of distributing ni particles in gi cells of the ith compartment, and this is representing the number of ways of distributing nk particles in the kth compartment, which is divided into gk cells. So this is representing a particular macro state. तो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स विल बी रिप्रेजेंटिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. ठीक है, so the total number of different arrangements for all the n particles of the system, that is the thermodynamic probability for a particular macro state, is given by this. ठीक है, so this is representing the number of ways of distributing the n particles of the system in this particular macro state. ठीक है, तो उन सबका प्रोडक्ट हो गया. तो प्रोडक्ट्स को we can write compact form में with the help of pi. So this can be rewritten as pi, where I going from 1 to k and ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial into gi minus 1 factorial. So here pi is denoting the multiplication of terms corresponding to various values of I. I की value हम substitute करते जाएंगे 1 to k and we'll get this expression only. Summation हम use करते हैं when we have to add the terms. Pi हम use करते हैं for the multiplication of terms. तो अब हमें thermodynamic probability मिल गई in general for this particular macro state. अब हमें क्या निकालना है, probability for the most probable macro state, and we know most probable macro state जो होती है उसकी probability maximum होती है. तो maximum probability निकालने के लिए पहले हम log w निकालेंगे, फिर उसका first differentiation करेंगे और उसको put करेंगे equal to 0. तो W हमारा कितना है, ये है. देखो यूजुअली क्या होता है, GI हमारा बहुत ज्यादा है. ठीक है, हम अपने जो कंपार्टमेंट है उसको लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड करते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे वो भी बहुत ज्यादा है. सो Ni एंड Gi जो है दीज आर वेरी लार्ज नंबर्स एज कंपेयर टू 1. सो वी कैन नेग्लेक्ट 1 in comparison to Ni plus Gi in the numerator, and we can neglect 1 in comparison to Gi in the denominator. So we get W as pi I going from 1 to k Ni plus Gi factorial divided by Ni factorial into Gi factorial. So we have here just neglected 1 in comparison to Ni and Gi since they are very large in number. So this is the final expression of the thermodynamic probability. अब हम इसका log निकालेंगे. This log is natural log only, ln w. उसको ln लिख लो या log लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Then log w will be equal to, इसका हम पूरे का log लेंगे. ठीक है, log a upon b क्या होता है, log a minus log b. ठीक है, तो ये हो गया log Ni plus Gi factorial minus log Ni factorial minus log Gi factorial, और पाए जो है उसको अब हम रिप्लेस करेंगे बाय समेशन. क्यों, यहाँ पर देखो अगर हम इसका log लेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करो.
अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने पूरा खोल दिया, ठीक है, पाई को, और अब मैं यहाँ पर इसका लॉग ले रही हूँ ln, ठीक है, तो इन सब टर्म्स का, ये सब टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में log ऑफ a इंटू बी इंटू सी अप टू kth टर्म क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c, दैट मीन्स पाई इज रिप्लेस्ड बाय समेशन, तो इट विल बी समेशन ऑफ log, चलो इसको ऐसे समझो, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, log a इंटू बी इंटू सी, चलो सिर्फ दो टर्म्स ले लो, सपोज हम सिर्फ यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं समझाने के लिए, दिस इज a एंड दिस इज b, ये हमने पाई फॉर्म में लिखा था, ठीक है, इसको हमने यहाँ खोल दिया, तो ये हो गया log a इंटू b, log a इंटू b को वी कैन राइट एज log a प्लस log b, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम उसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसमें समेशन लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने समेशन लगा दिया, आई गोइंग फ्रॉम 1 to k log ऑफ दिस टर्म, ठीक है, अब इस टर्म का लॉग क्या होगा, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये हो गया log ni प्लस जी आई फैक्टोरियल माइनस log ni फैक्टोरियल माइनस log जी आई फैक्टोरियल। आई होप ये अब सबको क्लियर है। ये चीज मैंने तब भी बताई थी जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव किया था, क्योंकि कॉमन स्टेप्स हैं हमारे, बस यहाँ पर क्या फर्क है, हमारा W चेंज हो रहा है, तो अब हमने W निकाल लिया ना, तब आगे हमारे रेस्ट ऑफ द स्टेप्स जो है वो डिट्टो सेम होंगे, लाइक वी डिड इन दी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है कि इसको हमने इस फॉर्म में कैसे लिखा, इफ वी टेक द लॉग, ठीक है, लॉग हम जब लेंगे तो ये जो पाई है हमारा ये समेशन से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि सारी जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स थी जब हम उनका लॉग लेंगे तो वो हमारी ऐड हो जाएंगी, बिकॉज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी log a इंटू बी इज log a प्लस log b, फिर हम उसने उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा तो वो समेशन में आ गया, तो वी हैव समेशन ऑफ लॉग ऑफ दिस टर्म, तो इस टर्म का जब हम लॉग निकालेंगे तो दैट विल बी log a माइनस मतलब log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस log ऑफ ni फैक्टोरियल इंटू जी आई फैक्टोरियल, एंड log ऑफ ni फैक्टोरियल इंटू जी आई फैक्टोरियल क्या होगा, log ni फैक्टोरियल प्लस log जी आई फैक्टोरियल, यूजिंग log a into b is log a plus log b, ठीक है, तो उस तरीके से वी विल गेट दिस इक्वेशन। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है तो एक बार खुद से अपनी बुक में सॉल्व करके देखना, ये क्लियर हो जाएगा। Now what we can do, we can now apply the Stirling's approximation. We can solve this factorial by using the Stirling's approximation, which says that log n factorial is equal to n log n minus n. And please note that we can apply Stirling's approximation only if this n is very large in number. So here ni is also very large and gi is also very large. So we can apply Stirling's approximation in all these three terms. तो हमारा हो गया log w समेशन log ni प्लस जी आई फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ni प्लस जी आई log ni प्लस जी आई माइनस ni प्लस जी आई। सिमिलरली यहाँ पर हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाया और यहाँ पर लगाया। Now इसको वी कैन राइट एज, ये टर्म तो एज इट इज आई ni प्लस जी आई इंटू लॉग ni प्लस जी आई माइनस दिस टर्म ni log ni माइनस दिस टर्म जी आई log ni। ये माइनस ni इस प्लस ni से कैंसिल होगा, ये माइनस जी आई इस प्लस जी आई से कैंसिल आउट होगा। सो वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल टू log w। और ये जो हमारी पर्टिकुलर स्टेट है, इफ दिस टू रिप्रेजेंट अ most probable macro state or a equilibrium state, we know that for an equilibrium state the thermodynamic probability is maximum, or the equilibrium state represents the state of maximum thermodynamic probability. So just differentiate this equation and equate it equal to 0, because we know for maximum or minimum first derivative goes to 0. तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जी आई क्या है, हमारा नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें हमने ith कंपार्टमेंट को डिवाइड किया है, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। पर जो हमारा सिस्टम है वो डायनेमिक है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर पोजीशन, तो इसका मतलब ni जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है।
सो वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ni, और gi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होंगी, gi बीइंग कांस्टेंट। तो ये हो गया समेशन ब्रैकेट में ni प्लस जी आई का डिफ्रेंसिएशन होगा dni, ये टर्म एज इट इज, प्लस अब ni प्लस जी आई एज इट इज, और log ni प्लस जी आई का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन ni प्लस जी आई इंटू dni। नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस dni log ni, देन माइनस ni एज इट इज, log ni का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन ni dni, इसके करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंसिएशन होगा 0। ठीक है, gi is just a number and it is not a quantity of variation like ni. Since system is dynamic, so ni keeps on changing, but the number of cells in which a particular compartment is divided, that remains constant, so dgi is 0. So we'll get this equation. Now this equation can be rewritten as, this is equal to summation bracket में dni log ni plus gi, this first term, this is written over here, minus this term dni log n I, इसको हमने यहाँ लिखा। ठीक है, क्यों? अब यहाँ पे देखो ni plus gi cancel out होगा from both the numerators and denominators and we get plus dni. Similarly यहाँ ni cancel out होगा and we get minus dni, so ये दोनों आपस में cancel out होंगे, plus dni minus dni, and we get this equation. I can take dni common, so it becomes summation log ni plus gi minus log ni, that is in bracket, into dni equal to 0. So this is our d of log w. ठीक है, now basic approach हमारी क्या थी, d log w को हम add करेंगे with minus alpha of summation dni and minus beta of summation ui dni. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या थी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस समेशन dni इज 0. सेकंड कंडीशन क्या थी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, that is u is constant, or we can say that u is equal to summation ni ui, so du is equal to summation ui dni, and this remains constant. So since the total energy of the system u is constant, so du is 0. So we now use the Lagrange's method of undetermined multipliers. So we multiply this equation with minus alpha, this equation with minus beta, and we add these two equations with this equation. ठीक है, so this is the Lagrange's method of undetermined multipliers. d log w क्या है, देखो summation log ni plus gi minus log ni, तो हम सबको ऐड किया हमने, समेशन log ni plus gi minus log ni, दूसरी टर्म हमारी क्या हो गई, माइनस अल्फा समेशन dni, सो माइनस अल्फा हमने dni कॉमन ले लिया। तीसरी टर्म क्या थी, माइनस बीटा समेशन ui dni, समेशन यहाँ पर है, ui यहाँ है, dni हमने कॉमन ले लिया, सो वील गेट दिस इक्वेशन। आई होप ये सबको क्लियर है। टू गेट दिस इक्वेशन वी हैव मल्टीप्लाइड इक्वेशन 3.7 by minus alpha, 3.8 by minus beta, and then we have added these two equations with the equation 3.6, क्योंकि हम जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें या दो जीरो को आपस में हम ऐड करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, सो वी कैन यूज सच टाइप ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन 3.9, नाउ dni जो है हमारा वो तो जीरो नहीं हो सकता, सिंस ni कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उसका डिफरेंशिएशन नॉन जीरो है, तो ये समेशन जीरो कब होगा, व्हेन दिस ब्रैकेटेड टर्म गोज टू जीरो। सो log ni plus gi minus log ni minus alpha minus beta ui equal to 0, and we can write this term as, this is kind of log a minus log b, so it can be written as log a plus log a upon b. log a minus log b can be written as log of a upon b. ठीक है, तो ये इसी टाइप की इक्वेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं log of ni plus gi upon ni, that is equal to alpha plus beta ui. बीटा हमने ऑलरेडी डिराइव किया था in the last unit, in the first part of second unit, where we have derived Boltzmann Distribution Law. After that we have determined the values of capital A and beta, and we found that beta is 1 upon kt, where k is the Boltzmann constant. So here we can directly use this expression of beta. So this is log ni plus gi upon ni is equal to alpha plus ui upon kt,
or ni plus gi upon ni. If I take exponential on both sides, then left hand side becomes ni plus gi upon ni, that is equal to e raised to power alpha plus ui upon kt. ठीक है, इसको अब now I can write as 1 plus gi upon ni, that is equal to e raised to power alpha into e raised to power u upon kt, because we know e raised to power a plus b is e raised to power a into e raised to power b. So from this we can write gi upon ni is equal to e raised to power alpha into e raised to power ui upon kt minus 1. यहाँ पे ui आएगा, i यहाँ पर मिसिंग है, u के सबस्क्रिप्ट में i आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी. ठीक है, so from this equation we get ni is equal to gi upon e raised to power alpha into e raised to power ui upon kt minus 1. So this equation gives the most probable distribution of particles for a system obeying Bose-Einstein statistics, and this relation is called the Bose-Einstein Distribution Law. हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या आया था, ni is equal to, मैंने बताया था उसको अगर हम जब हम उसको जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो that can be written as ni is equal to gi upon e raised to power alpha into e raised to power beta ui, where beta is 1 upon kt. So e raised to power alpha into e raised to power ui upon kt. तो अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशन में, -1 का. ठीक है, रेस्ट सेम है. तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हमने डिराइव किया था तो हमने क्या किया था कि जो हमारा एक पर्टिकुलर फेज स्पेस था उसको हमने सिर्फ के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था. हमने के एनर्जी लेवल्स में सिस्टम को डिवाइड किया था. हमने हर एक एनर्जी लेवल जो है उसको नंबर ऑफ सेल्स में फर्दर डिवाइड नहीं किया था. मतलब हम ये कह सकते हैं हमने उस डेरिवेशन में क्या कंसीडर किया था कि हर एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही सब एनर्जी लेवल है. मतलब जी आई जो है हमारा वो 1 है, G1 भी 1 है. मतलब हर एक एनर्जी स्टेट जो है उसकी डीजेनरेसी 1 है, उसका स्टैटिस्टिकल वेट 1 है. हर एक एनर्जी स्टेट में अगर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ni इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर अल्फा इंटू ई रेज़ टू पावर ui अपॉन kt. पर अगर हम नंबर ऑफ जो हमारे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं या डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड करते हैं इनटू large number of cells, then in that case our relation becomes this. So this is the most general expression of Boltzmann distribution law, and for gi equal to 1 it becomes ni is equal to 1 upon e raised to power alpha into e raised to power ui upon kt, which we have derived. तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है अगर, तो जिस तरीके से डेरिवेशन बुक में दे रखा है उस तरीके से डेरिवेशन करना और डिराइव करना ni is equal to 1 upon e raised to power alpha into e raised to power beta ui. उसके बाद you can write that if we divide each energy interval or each energy state, if we divide each energy state into large number of elementary cells such that G1 represents the number of cells or the number of sub energy levels in the first energy state, G2 represents the number of sub energy levels in the second energy state, so on. Gi represents the number of sub energy levels in the ith energy state, and Gk represents the number of sub energy levels in the kth energy state. Then we can write ni is equal to gi upon e raised to power alpha into e raised to power beta ui. ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं विद द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस जो है -1 का है इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड द डेरिवेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. आई होप ये सबको क्लियर है. मैं अब इसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफली समराइज कर देती हूँ कि एग्जाम में जब ये आएगा किस तरीके से लिखना है. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में जब आता है द डिराइव द
Bose-Einstein Distribution Law. ठीक है, then you can directly start from here. ये समझाने के लिए था जो ऊपर है, ठीक है. You can directly start from here. Let these are representing number of particles and so on. Then you can write first step is the determination of thermodynamic probability. फिर तुम यहाँ तक लिख देना सिर्फ. There are Ni distinguishable particles to be distributed in Gi cells. उसके बाद you can directly write the total number of ways for arranging Ni particles in Gi cells is Gi into Ni plus Gi minus 1 factorial. Then उसके बाद you can write the effect of indistinguishability और उसके बाद फिर तो तुम as it is derivation शुरू कर सकते हो. Meaningless arrangements को जो है हमने हटा दिया, उनको हमने divide कर दिया, तो हमारे पास ये Wi आ गया corresponding to one compartment only, corresponding to ith compartment. फिर ऐसे अगर हम ये macro state consider करें तो what will be the thermodynamic probability for this particular macro state, वो हमारी ये आ जाएगी. I hope यहाँ तक सबको clear है. उसके बाद हमने क्या किया, इसका log लिया, फिर इसमें स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन लगाया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट किया इक्वल टू 0. फिर हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम की कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है. फिर उसके बाद सिंपली वी हैव अप्लाइड द लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स और वहां से वी हैव डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, एग्जाम में जो है ये फैक्टर Gi इंटू Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल कंसीडर करना चाहते हो या नहीं. अगर एग्जाम्पल कंसीडर नहीं करके डायरेक्टली लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और एग्जाम्पल लिख के अगर समझाओगे तो इस चीज का ध्यान रखना, गलती नहीं करनी. ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी बेटर इफ यू विल डायरेक्टली राइट दिस एक्सप्रेशन. पर लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए ये एक्सप्रेशन कैसे आई. ठीक है, ऐसे रटने में दिक्कत होती है, बट समझ के करोगे तो लिखना आसान है. तो आई होप सबको क्लियर है. यहाँ पर बस एक यही चीज डिफरेंट है कि ये चीज कहाँ से आई, रेस्ट तो हमारा उसी तरीके से है जैसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, बस W निकालना यहाँ पर डिफरेंट है. W निकालना डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अब हमारा जो system है, it is containing bosons, it is containing indistinguishable particles, it is not containing distinguishable particles. और indistinguishable particles है, और moreover हर एक सेल जो है it can occupy any number of particles. तो अब अगर हम आगे जाके फर्मी डिराइव करेंगे ना तो वहां पर भी W चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है कि हर एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट फर्मी डिराइव में हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हर एक सेल में जो है या तो 0 पार्टिकल होगा या 1 पार्टिकल होगा. ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब हम इस बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कंटिन्यूम लिमिट देखेंगे, फिर हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, उसके बाद वी हैव टू डू वन डेरिवेशन. दैट मींस अब हमने क्या किया, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया क्या होता है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी निकाल लिया. अब उसकी एप्लीकेशन तो देखेंगे ना, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एप्लीकेशंस ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 एप्लीकेशंस हम देखेंगे, एक तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स वी कैन एक्सप्लेन द phenomena of black body radiations or the distribution of energy as a function of wavelength for black body radiation. फिर उसके बाद हम देखेंगे बोस-आइंस्टीन गैस. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यूनिट 2 जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कंटिन्यूम लिमिट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ.